ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਬਾਣਾ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜਿਵਹਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਣ। ਜਿਨ ਬਾਸਕ ਨਿਤਰੈ ਘੱਤਿਆ ਕਰ ਨੇਹੀ ਤਾਣ। ਜਿਨ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰ ਮਧਾਣ। 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆਨ ਕੀ ਤੋਨ ਚਾਨਾਣ। ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜ ਦਾ ਜਤ ਕਿਓ ਪਲਾਣ। ਧਣਖ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣ। ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਭਾਣ। ਸਤੋਂ ਖੇਤ ਜਮਾਇਓ ਸਤੋਂ ਸ਼ਾਵਾਣ। ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀਐ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਸੁਝਿਓਸ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਣ। ਆਵਾ ਗੌਣ ਨਿਵਾਰਿਓ ਕਰ ਨਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਔਤਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣਾ। ਝਖੜ ਵਾਉ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਣ। ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣਾ। ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ ਜੋ ਸੋ ਸੱਤੇ ਦਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਉਮਤ ਹੈਰਾਨ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਬਾਣ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜਿਵਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਜੋ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 5 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ 7 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਅਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ
गुरु पातशाह जी के सिद्धांत की कीती है, गुरु पातशाह जी के उपदेश की। इन्हां दोनों गुरु के प्यारिਆਂ ने किन्ने सोहने शब्दों में ये जिक्र जिहड़ा कीता है बाणी विच भी किद्दां गुरु पातशाह जी के दरबार विच आके उन्होंने किद्दां सोहने मोती परोए ने ते किद्दां उन्होंने अपने जीवन दे विच गुरु पातशाह की शख्सियत नूं महसूस किया। तो वो ये लफ्ज़ अपनी सुरत विचों उच्चारण करने लई तैयार हो गए। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी के बारे देखो किन्ने प्यारे बचन इत्थे लिखे ने। सो टिक्का, टिक्का का अर्थ है मत्थे का नूर, चेहरे की रौनक, मत्थे का खड़ाओ। बहने का अर्थ है तखत। कहते सो टिक्का सो बहना सोई दी बाण। हुण भाई सत्ता जी कहते ने ओहो ही नूर है, ओहो ही तखत है, ओहो ही दरबार है। जिवें पिछे आपां पढ़ आए हैं कि जो तोहा जुगत साए सह काया फिर पलटिए। जिवें उन्होंने जदों गुरु अंगद साहब महाराज गुरु नानक साहब जी की जगह पर बैठ के जिम्मेवारी निभा रहे हैं, वो कहते फर्क कोई नहीं लगा। ओहो ही जुगती है, ओहो ही जोत है, ओही काम करने के तरीके ने। अज तीजी पीढ़ी ते आ गई है गल। तीजी पीढ़ी होंदी है ना, पिता होवे फिर अगे पुत्र हुंदा है, फिर अगे पोतरा हुंदा है। हुण इत्थे शब्द वरते ने प्यू दादे जिहा पोतरा प्रवान। प्यू कौन है? धन गुरु नानक साहब। हुण वेखो गल आ गई ना भी गुरु की पीढ़ी किहड़ी है। फिर हुण वैसे जदों पिता की गल आएगी गुरु अमरदास महाराज जी के तेज भन का नाम आएगा, गुरु अमरदास महाराज के पिता का। जदों गुरु अंगद साहब जी के पिता का नाम आएगा तो उदों फेरूमल जी करके नाम आएगा। कल्याण मेहता कल्याण दास करके गुरु नानक साहब के पिता का नाम आएगा। पर इत्थे गल गुरु की कुल की हो रही है, शरीर की पीढ़ी की गल नहीं हो रही। तो गुरु की कुल किहड़ी है? प्यो दादे। प्यो कौन है? गुरु नानक साहब। हुण प्यो कौन है? गुरु अंगद साहब। दादा कौन है? गुरु नानक साहब। प्यो दादे। पोता कौन है? गुरु अमरदास। हुण गुरु अमरदास महाराज पोता है गद्दी के मामले च। उन्हां दे पिता गुरु अंगद साहब जी ने, उन्हां दे दादा जी गुरु नानक साहब जी ने। हुण इस हिसाब नाल अगे गुरु रामदास जदों इस गुरता गद्दी ते बहणगे, वो पोतरे तो बाद पड़पोतरे होणगे गुरु नानक साहब दे। हुण तुसीं वेखो क्या गल समझ आ गई। जिहड़े लोग ये गुरु की कुल विच होण दा अपना मान भरम पाल के बैठे ने, गुरु की कुल नादी पुत्र है जिहड़ी गुरु की गल सुनते हैं। बिंदी पुत्र नूं कोई थां नहीं है। बिंदी पुत्र ने जे गल मन्नी है फिर सत्कार है, फिर अदब है। हुण जदों आपां अगे जाके वेखांगे गुरु अंगद साहब जी के, गुरु अर्जन साहब जी के घर विच गुरु हरगोबिंद पातशाह का जन्म होंदा है। बिंदी पुत्र के तौर पर भी वो प्रवान है, नादी पुत्र नादी करके भी प्रवान ने, भी उन्होंने घर पैदा होए ने। हुण गुरु रामदास पिता महाराज के घर बिंद तो पैदा होए गुरु अर्जन साहब। जदों नादी तौर पर भी जिहड़े उन्होंने शब्द कहे उन्होंने अपनी जिंदगी में कमा के विखाया है। पर उत्थे गल बिंद की घट रह के उत्थे नादी की गल ज़्यादा है, भी गल मन्नी गई है। गुरु की कुल की है? जिहड़ा गुरु की गल सुनदा है ते मनदा है। हुण जिहड़ा इत्थे शब्द वरतिया प्यो दादे। दादा कौन है? गुरु नानक साहब। प्यो कौन है? धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह। पोता प्रवान। हुण जिहा शब्द वरते, जिहा दा अर्थ है वर्गा। उन्हां वांगू ही जिवें वो प्रवान हो गए, उन्हां दी इज्जत हुई, उन्हां दी शोभा हुई, अज पोते की भी उदां ही शोभा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो काम पोतरे ने दादे वाले किते ने, जिद्दां जिहड़े गुणा करके दादे की शोभा सी, जिन्ना गुणा करके पिता की शोभा सी, वो गुण जदों ने, हुण गल क्लीयर हो गई ना इत्थों। हुण कई बारी जिस स्कूल दे विच कदी दादा प्रिंसीपल होवे, उस स्कूल विच कदी पोतरे नूं बाप नूं स्कूल का प्रिंसीपल बनदा मान मिल जाए, तो वो सिर्फ पुत्र होने करके थोड़ा उस अहुदे ते बहिंदा है। वो स्टडी करके वो प्रिंसीपल का अहुदा हासिल करता है, उस योग बनता है। कहते अज कमाल की गल वेखो भी जे अज वो पोतरा प्रवान होया गुरु अमरदास महाराज अपने दादा जी दियां नज़रां दे विच जां समाज विच वो प्रवानगी मिली है, तो उहदे पिछे इक्को वजह सी, वो गुण वेखने पैने ने आपां। हुण जिवें गुरु नानक साहब जी बारे
चौथी पौड़ी दे विच भाई सत्ता जी ने जिक्र किया है कि उन्होंने मधाना पर्वत कर, जिद्दां उन्होंने अपनी उच्ची सुरत नूं मधानी बना के अपने मन रूपी इस बासक नाग नूं नेत्रा पा के जो शब्द नूं रिड़किया 14 रतन निकाले, ਉਹ शब्दावली इत्थे 6 नंबर पौड़ी विच भाई सत्ता जी ने गुरु अमरदास जी के परथाई भी वरती है। भी जे गुरु नानक साहब ने उच्ची सुरत की मधानी बना के शब्द नूं रिड़के तो 14 रतन कढ़े ने, तो गाड़ी पोतरा भी वो काम ही कर रहा है। किदां? जिन बासक, बासक का अर्थ है टेढ़ा मन, नाग मन, जिहड़ा जिवें सप विच जहर हुंदी है, मन विच भी इदां जहर है, जिवें सप विच विंग हुंदी है, वाल हुंदे ने, मन विच भी विंग ने। इस बासक मन नूं नेत्रा पा के कहणगे जिन बासक नेत्रा घत्तिया कर नेही ताण, नेही हुंदी है ना चाटी दे उत्ते जिहदे विच मधानी पाई जाती है, तो ਉਹ चाटी दे नाल उत्ते फिट कीती हुंदी है, वो मधानी नूं टिका के रखदी है, यानी कि मधानी उहदे आसरे फिर टिकी रहिंदी। तुसीं नोट कीता होगा जिन्हां ने कदी अपणीਆਂ दादियां पड़दादियां नूं घरां 'च मावां नूं दुੱਧ दहीं रिड़कदे वेखिया होएगा। मधानी जदों टिकाई जाती है ना चाटी दे विच, तो जिथे चाटी का मूँह हुंदा है, जिथे रिड़किया जाता है, उत्थे लकड़ की बनी हुंदी है नेहणी, उहनूं कहंदे ने नेही। हुण उहदे विचों दी मधानी लंघाई जाती है जदों दही नूं रिड़किया जाता है। इत्थे नेही शब्द वरते, कहंदे कर नेही ताण, किहड़े कमाल दे शब्द वरते ने इत्थे। इत्थे नेही ताण दा अर्थ की, ताण दा अर्थ ताकत। जदों धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने इस मन नूं, मन नाग नूं नेत्रा पा के कहण लगे अपनी उच्ची सुरत नूं मधानी बना के, जिवें सुमेर, हुण देखो शब्दावली किदां रलदी है। जिन समुंद वरोलिया, उत्थे शब्द रिड़ क्यों ना आखिया सी, इत्थे समुंद कहता। अगले शब्द आ गया कर मेर मधान। हुण सुमेर पर्वत उच्चा है, साडी बॉडी चों सब तो उच्ची साडा ब्रेन है, साडी सुरत है। सुरत दी मधानी नाल इस मन रूपी नाग नूं नेत्रा पा के जदों उस शब्द के आसरे नाल, आत्मक बल नाल, ज्ञान नाल, उस नेही की ताकत नाल जदों मधानी दे नाल इस शब्द नूं रिड़किया, भाव समुंदर नूं वरोलिया। हुण गल क्लीयर हो गई ना इत्थे। उत्थे शब्द रिड़कियोन शब्द वरतिया सी 14 रतन निकालियोन, तो उत्थे नाल प्रोफैसर साहब ने बड़ा प्यारा नोट दिता सी भी एक मिथ मन्नी गई है कि देवतियां ने समुंदर रिड़किया कि उहदे विचों 14 रतन, देवते दे दैंतां रल के समुंदर रिड़किया तो 14 रतन उहदे विचों कढे। कमाल की गल तुसीं वेखो, 14 कहंदे रतन समुंदर नूं रिड़किया। सुमेर पर्वत नूं मधानी बना के, सुमेर पर्वत सब तो उच्चा है, पर इदां दीयां मिथां विपर वल्लों बना के समाज विच प्रचारियां गईयां। सुमेर पर्वत की मधानी बना के समुंदर नूं जदों रिड़किया तो 14 रतन विचों कढे। हुण भगत भाई सत्ता जी कहते ने सानू नहीं पता भी समुंदर रिड़किया कि नहीं रिड़किया, पर आ साडे सामने प्रैक्टिकल असीं वेखिया कि जिद्दां पिता ने, दादे ने उच्ची सुरत की मधानी बना के शब्द नूं रिड़किया सी ना, उदां ही अज पोतरा रिड़क रहा है। उच्ची सुरत की मधानी दे नाल जदों शब्द नूं रिड़किया, इत्थे समुंदर शब्द आ गया। जिन समुंद वरोलिया कर मेर मधान। समुंदर रिड़कण का अर्थ की है? शब्द नूं रिड़के। फिर कहते 14 रतन निकालियन। हुण सेम शब्द उत्थे आ गए जिवें उत्थे समुंदर देवतियां ने रिड़ के 14 रतन विचों कढे सी। कहते सानू नहीं पता 14 रतन कढे उहदे नाल समाज का कोई फायदा होया कि नहीं होया, जां ओह वेखे किसी ने कि नहीं वेखे, उत्ते मिथ सी। पर इत्थे फायदा होया। 14 रतन निकालियन कीतोन चानान। कहते वो 14 रतन जदों गुरु अमरदास वर्गी शख्सियत ने समुंदर वरोल के शब्द नूं रिड़ के विचों कढिया ना, समाज में चानण होया। किदां चानण होया सुणिओ हुण। जदों गुरु अमरदास महाराज वर्गी शख्सियत शब्द रूपी समुंदर नूं रिड़ के उहदे विचों आत्मक बल हासिल करदे आ, सोझी हासिल करदे आ। किदां चानण कीता? इत्थे सती प्रथा सी। गोइंदवाल साहब जदों धन गुरु अमरदास वर्गी महान शख्सियत बैठी है, इस भारत देश में जदों पति मरदा सी ते औरत नूं तैयार करके धर्म दे नां ते पति दे नाल साड़ दिता जांदा सी ते उहनूं इह कहा जांदा सी तेरे वास्ते बड़ी माण वाली गल है,
ਤੈਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਈਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਔਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ। ਭੰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸਤਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਰਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ? ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ, ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕ ਜੁਲਹਾ, ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਜਲਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆ, ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਅੜਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਊਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਠੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਘੁੰਡ ਪ੍ਰਥਾ, ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਵੀ ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਮਰਦ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ। 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲ, ਆਹ ਸੀ 14 ਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਤਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਾਏ। ਕੀ ਤੋਨ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ,
मैं कहना उन्होंने वास्ते चानण का मुनारा है गुरु अमरदास महाराज। उन्होंने वास्ते तो ये शब्द ने गुरबाणी से जग में चानण कर्म वसै मन आए। चानण च हुण हनेरे च ठोकरां खांदा बंदा, पर चानण विच तां बंदे नूं दिसदा दूर तक। हुण कीतों चानाण, फिर इत्थे बस नहीं। कहते गुरु अमरदास महाराज वर्गी शख्सियत घोड़ा कीतो सहज दा। हुण आ भाई सत्ता जी अपनी रसना तो शब्द उचारण कर रहे हैं गुरु अमरदास जी के परथाए, घोड़ा कीतो सहज दा। जिद्दां अज के समय साढ़े कोल मोटरसाइकिल गड्डियां साधन ने सफ़र कर ली, पुराने समय घोड़े घोड़ियां ऊठ इदां दे साधन सी। कहते गुरु अमरदास महाराज जी ने सहज नूं अपना घोड़ा बना लिया, यानी कि इहनूं अपनी सवारी बना ली। यानी कि गुरु अमरदास महाराज की जिंदगी च इन्ना सहज है, आसे पासे किन्ने लोग आए उन्होंने डलाउण वास्ते, पर सहज के घोड़े तो गुरु अमरदास महाराज वर्गी शख्सियत नूं कोई नहीं उतार सकिया। हुण आपां जप बाणी पढ़दे हां, उहदे अखीर ते की आउंदा है 38 नंबर पौड़ी ते, जत पहारा धीरज सुनियार। धीरज सहज, आपां कहंदे सहज रख। हुण जिंदगी जे बंदे ये गुण धारण कर लैण, जिंदगी किन्नी तरक्की कर सकती है। हुण इत्थे शब्द वरत्या घोड़ा कीतो सहज दा। गुरु अमरदास महाराज वर्गी शख्सियत ने सहज नूं अपनी जिंदगी का घोड़ा बना लिया। यानी कि सहज गुरु अमरदास महाराज जी की सवारी है। जिवें बंदा अपने घर में साधन रखदा किते रिश्तेदार दे कोल जाण लई, शहर जाण लई, दूर दुरेडे जाण लई, गुरु अमरदास महाराज जी की जिंदगी का सफ़र करन दा, एक दूजे शहर जाण दा सब तो वधिया साधन की सी? सहज। सहज नूं अपनी सवारी बनाया ते उत्ते फिर काठी भी पाई जाती सी, जत की ओ पलाण। जत दी उत्ते काठी पाई है, पलाण दा अर्थ है काठी। घोड़े उत्ते काठी पाई जाती सी ना, तो काठी उत्ते बंदा बैठता है। जत मीनिंग अपने ज्ञान इंद्रियां नूं वकारां तो रोक के रखना, ये सहज दे घोड़े ते काठी पा के रखी सी। हुण जत दा अर्थ जती हुंदा है। जती मीनिंग साडे समाज च जती कहंदे वो जती ने जी, उन्होंने विआह नहीं कराया, पर बाणी आंदी जती सदावें जुगत न जाणे, छड्ड बहें घर बाहर। बाणी दा वाक है भी परिवार च रह के भी तुसीं जती बन सकते हो, क्योंकि जोग ना भगवीं कपड़ी, जोग ना मैले वेस, नानक घर बैठिया जोग पाइए सतगुर कै उपदेश। भगवां कपड़ियां पाया जोग नहीं होना, मिलाप नहीं होना। जोग ना भगवीं कपड़ी, जोग ना मैले वेस, भगवें कपड़े पाया मैले कचैले कपड़े पाया। नानक घर बैठिया जोग पाइए। घर का अर्थ की है? अपने गृहस्थ रूपी परिवार च बैठ के अपने अंतरात्मे टेके। कहते नानक घर बैठे हैं जोग पाइए सतगुर के उपदेश। सतगुर के उपदेश द्वारा, सतगुर की सिक्ख्या द्वारा जिंदगी को खूबसूरत तरीके नाल जीया जा सकता है। हुण इत्थों पता लगता भी ये लोग जत के अर्थ की करते सी। ये जत समझते सी फलाने जती ने जी, उन्होंने विआह नहीं किया। श्रीचंद बारे भी तो यही शब्द सी, बाल जती है श्रीचंद बाबाणा दिओरा बनाया। हुण ध्यान नाल सुणो भी ये गल्लां जदों असीं सतगुर दी बाणी नूं पढ़दे हां, विचारदे हां, तो बहुत सहजे तरीके नाल सानूं समझ आ जाती है भी बाणी सानूं की उपदेश। ये गल पहिलां भी आपां विचारी भी कोई अपनी मर्जी नाल 100 वार ना विआह करावे। बड़े परिवार ने जिन्हां विच 2-2 भरा 3-3 भरा हुंदे, एक अद्धा विआह वैसे ही नहीं कराउंदा, पर वो डेरा पा के थोड़ा बह जांदा भी मैं बड़ा वड्डा ब्रह्म ज्ञानी हो गया, क्योंकि बिंद राख जो तरीए भाई खुसरे क्यों ना परमगत पाई। जे बिंद रखण नाल रब दी प्राप्ति होनी है, सब तो पहलां हिजड़े नूं मिल जाए, वो तो सब तो बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, वो तो जमदे ब्रह्म ज्ञानी है। फिर तो खैर जी इत्थे गल की जा रही, कहते घोड़ा कीतो सहज दा। गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी जिंदगी सहज नूं अपना घोड़ा अपनी सवारी बना लिया। जत कीओ पलाण, जत नूं सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संजम भीख्या करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। इत्थे गंगा नूं बड़ा पवित्र मन्निया गया सी। कहते गृहस्थी जे तुसीं गंगा पवित्र मानते हो ना, गृहस्थी परिवार च रह के गंगा के जल नालों भी पवित्र है फिर जे हिसाब नाल ते, क्योंकि सो गिरही जो निग्रह करे। वो गृहस्थी है जो परिवार च रह के भी अपने मन नूं विकारां तो रोक के रखता है। जप तप संजम भीख्या करे, जप नूं तप नूं वो अपनी भिख्या बनावे, भाव इहदी मंग रखे। पुन दान का करे शरीर, अपने शरीर नूं हमेशा ही चंगियां कामां लई वरते। सो गिरही गंगा का नीर। लोग इत्थे गंगा के जल नूं बड़ा पवित्र मानते सी, ते बाणी आंदी जे तुहाडे हिसाब नाल गंगा बड़ी पवित्र है, फिर गृहस्थी गंगा तो भी उत्ते है, क्योंकि वो तो परिवार च रह के बुरियां कामां तो बचिया होया है, परिवार च रह के भी। तो हुण ध्यान नाल सुणो, घोड़ा कीतो सहज दा, जत कीओ पलाण। कहण लगे धनख चढ़ायो सत दा। फिर गुरु अमरदास
महाराज वर्गी शख्सियत ने कहते सत नूं अपना धनख बनाया होया है, जस हंदा बाण, तो जस नूं परमात्मा की सिर सलाह का तीर बनाया होया है। हुण जदों तीर कमान छड्ड के छड्डिया जाता है तो गुरु अमरदास को तीर काहदा भला, काहदा तीर है? तीर है सिफत सलाह का। जदों गुरु अमरदास महाराज वर्गी शख्सियत कह लगे सत दे धुनख विच रख के सिफत सलाह का तीर छड्डदे ने, तो तुसीं वेखो बैठे गोइंदवाल साहब की धरती ते आ ते तीर इस देश के बादशाह के हिक विच जा मारे। अकबर वर्गे प्रभावित हो के आए, गोइंदवाल साहब की धरती ते प्रभावित हो कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक लागत ही भोए गिर परिया परा करे जे शेख। तीर इत्थे बैठे गोइंदवाल साहब की धरती ते आ, प्रेमे कोड़ी दे हृदय जाके तीर वजदा है। वह प्रेमा बहुत अमीर शाहूकार का बेटा सी, जिहड़ा कई भयानक बीमारियां ने उन्होंने अपने घेरे च लै आंदा। गोइंदवाल साहब लैके आए, उहदा वैदां ने इलाज किया। एक वेखो इतिहास विचों दो लालो का जिक्र आंदा, एक लालो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी वेले एमनाबाद की धरती ते होया है, ते एक लालो गोइंदवाल साहब की धरती ते होया जो गुरु अमरदास महाराज जी वेले बहुत वधिया वैद सी। आ जिहड़ियां डिस्पैंसरियां निके निके हॉस्पिटल अज भी सानूं गुरुद्वारियां दे नाल दिसदे आ, इहदा तुसीं मुੱਢ वेखोगे तो गुरु साहब ने वजह सी भी जिहड़ा शरीर के रोग वास्ते आया उहदे वास्ते वैद हकीम कोल रखते सी महाराज, ते जिहदा मन रोगी उहदे वास्ते शब्द नाल गुरु साहब इलाज करते सी। जिवें खुराक की आपां गल करदे हां, मन की खुराक शब्द है, ज्ञान है, तन की खुराक जिहड़ी असीं खुराक रोज़ खाने आ, प्रशादा पानी छकदे हां, इहदा जिक्र भी बाणी च अगे जाके कीता। तो भाई जदों असीं इतिहास विचों पढ़दे हां, प्रेमे नूं जदों शब्द के तीर नाल विन्निआ तो फिर उही मुरारी बनिया। फिर मत्थो की पत्नी का नाम सी, जदों 22 मंजियां 52 पीढ़े थापे उन्हां विचों एक पति पत्नी भी प्रचारक लाए गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने। जिथे औरत नूं पैर की जुत्ती कहा जा रहा, जिथे औरत नूं बघियाड़न ते पता नहीं किहड़े-किहड़े शब्दां नाल दुरकारिया जा रहा सी, माता खीवी वर्गी शख्सियत का गुरु दरबार दे विच गुरु के लंगर विच प्रशादा वरताउणा, खीर वरताउणी, आए सिखां नाल गल्लां बातां करनियां ते उन्होंने भाई बलवंड जी एक संघने रुख के नाल उहदी तुलना करनी भी बलवंड खीवी नेक जन जिसकी बहुती छांव पुतराली, लंगर दौलत वंडी अरा समर्थ खीर के हाली, गुरसिखां के मुख जले मनमुख थिए पराली। जिथे औरत नूं तुलसीदास वर्गिया ने पशुओं की कतार च खड़ा करता, जिथे जोगियां ने बघियाड़न तक कह दिता, उत्थे गुरु नानक साहब की इस फिलोसफी नूं समझण वाली पहली औरत बीबी बेबे नानकी है। तो गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह के वेले माता खीवी लंगर च प्रशादा वरता रही, तो गुरु अमरदास महाराज के वेले भाई प्रेमे की पत्नी, ये बाद में भाई प्रेमा यो मुरारी बनया, यदी पत्नी का नाम ही मत्थो सी। तो फिर इनू प्रचारकां ही थापिया, जिथे तो धर्म ग्रंथ पढ़न की आग्या नहीं, गुरु अमरदास महाराज के वेले प्रचारकां के तौर पर भी बीबियां विचरदियां रहियां। भावें माता खीवी कला लंगर थोड़ा वरताउंदी होएगी, इसका मतलब उन्होंने गुरमत बारे पता सी, ताई ते दातू ते दासू नूं वो मोड़ के गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल लैके आए ने। माता खीवी वर्गी शख्सियत तो प्रभावित होकर ही उन्होंने बेटे दातू ते दासू गुरु अमरदास जी के कोल आउणा इस गल का सबूत है। उन्होंने को दलीलां सी, उन्होंने को बाणी दी विचार सी, उन्होंने को बाणी का गूढ़ ज्ञान सी। अक्सर भाई बलवंड जी उन्होंने शख्सियत तो प्रभावित होए ने, ते एवें थोड़ा इन्ने सोहने शब्द उन्होंने बारे लिख दिते ने। तो इत्थे खैर जिहड़ी गल आ रही है कि धनख चढ़ायो सत दा, गुरु अमरदास महाराज वर्गी शख्सियत कोल सत दा, उच्चे किरदार का, उच्चे करैक्टर का धनख है। कह लगे जस हंदा बाण, जिहड़ा तीर है वह सिर सलाह का, जिधर नूं छड्डदे ने फिर तीर शिव, वो फिर अनियाला तीर जदों जाके वजदा है तो फिर वो उहदा ही हो जाता है, हमेशा रब दा ही प्यारा बन जाता है। फिर कहते हैं कल विच धूं अंधार सा, इन्हां कलेशां वाले समय दे विच ऐ घुप हनेरा सी चारे बन्ने, ऐ भै भीत होई पई दुनिया सी। कहते ने कल विच धूं अंधार सा, चढ़िया रै भाण, भाण का अर्थ की है सूरज। कितने प्यारे शब्द वरते ने, भाण का अर्थ की सूरज। कहते गुरु अमरदास वर्गी शख्सियत इस हनेरे विच मानो सूरज चढ़ पिया। जिवें रात नूं वेखो किन्नियां लाइटां जगाउणियां पैंदियां, किन्ना हनेरा हुंदा, ओही पिंड हुंदा, ओही शहर हुंदा, ओही घर हुंदा। दिन वेले लोग गलियां च कल्ले बाजारां च घुम आउंदे, रात नूं क्यों जाण तो डरदा? क्योंकि रात नूं हनेरा है।
दिन वेले बंदा कल्ला भी घूम आउंदा है, कई बारी किसी सोटे की भी लोड़ नहीं, रात को माड़ा जिहा भी घरों बाहर जाना हो तो कहता कोई डांग सोटा चाहिए, हनेरा है, हनेरा भै भीत करता है। हनेरे में तो बहुत बारी बाहरला दरवाजा बंद कर तो भी कई बारी जवाक डरते हैं अपने, तो दिन वेले गलियां च घूमी जाते हैं क्योंकि चानन होंदा, सूरज होंदा। कहते जिथे लोग भयभीत होए पए सी, हनेरे नाल घुप हनेरी दुनिया बनी पई सी, गुरु अमरदास महाराज वर्गी शख्सियत सूरज की न्याई उदय होगी। हुण वेखो सुमेल वेखो किड्डा प्यारा, भाई गुरदास गुरु नानक साहब के प्रथाए भी सूरज शब्द वरतते हैं। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, जो कर सूरज निकले, उत्थे सूरज शब्द गुरु नानक साहब जी के प्रथाए वरते, तारे छाप अंधेर पलोआ, इत्थे रै भाण गुरु अमरदास जी के प्रथाए वरते। क्योंकि प्यो दादे जिहवा पोता प्रवान है ना, जो क्वालिटी कई बार पीढ़ियां बदलदियां कि नहीं, ईमानदारी नाल सोचियो। हुण आ पीढ़ी एक युग बदल गया, आपां कहने हुण दादे की सोच होर सी, प्यो की थोड़ी जी होर है, पोतरे की थोड़ी जी होर है, इदां कहने आपां। साडे समाज आम यह कहा जाता ना, ये तिन्नां दा आपस सुमेल करना औखा है। खाण पीण का फर्क पै सकता है, पर जिहड़ी विचारधारा इत्थे नहीं फर्क पिया। इत्थे तुसीं वेखो गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अमरदास महाराज जी तक गल चल गई है, पर इत्थे शब्द भाई सत्ता ते बलवानी जी वरत रहे ने, प्यो दादे जिहा पोता प्रवान, जिद्दां प्यो सी जिद्दां दादा सी उदां ही अज पोता प्रवान हो रहा है, बराबर प्रवान हो रहा है। क्योंकि उन्हां विच लक्षण, उन्हां विच गुण, उन्हां विच क्वालिटी इक्को जी है। तो ये शब्द इन्ने प्यारे वरतने, इन्ने शब्दों का ये दसदा है कि समाज में पीढ़ियां में चीज़ां बदल सकदियां ने। पर गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह, धन गुरु अंगद साहब तो गुरु नानक साहब, इन्हां विच कोई फर्क नहीं है। तो किन्ने प्यारे बचन वरते इत्थे, कहण लगे प्यो दादा ते पोतरा तिन्हां दी विचारधारा विच कोई फर्क नहीं है, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान। तो इत्थे अगे शब्द वरत्या, कहंदे सत्तों खेत जमायो। सत्तों का अर्थ की है, कह लगे उच्चा करैक्टर, उच्चा करदार। सत्तों खेत जमायो, कह लगे गुरु अमरदास महाराज वर्गी शख्सियत ने सत्त का उच्चे करैक्टर का, उच्चे करदार का ही ओदी खेती बीजी है, ओदी फसल बोई है। सत्तों खेत जमायो, सत्तों शाहवान। शाहवान का अर्थ की है, राखी करनी। कहते सच नूं, उच्चे करैक्टर नूं, उच्चे करदार नूं ही इस फसल की राखी बिठाया। यानी कि सारी गल ही करदार की हो रही है। जिहड़ी गल पहली पौड़ी च भाई बलवान जी ने की सी, नाऊं करता कादर करे क्यों बोल होवे जुखीम दे, इत्थे 6वीं पौड़ी च आके वह गल भाई सत्ता जी गुरु अमरदास जी के प्रथाए कह रहे हैं। सत्तों खेत जमायो, कह लगे सत्तों शाहवान। सत्त की खेती की गुरु अमरदास महाराज जी ने, तो कमाल की गल तुसीं वेखो, कह लगे सत्त ही उस फसल का राखा बना बिठाया हुआ है। फिर कहते नित रसोई तेरी है, कहते इत्थे बस नहीं, ये तो सी मन की खुराक। नित रसोई तेरी है घ्यो मैदा खान। हे गुरु अमरदास महाराज, तुहाडी रसोई दे विच, रसोई मीनिंग तुहाडे लंगर विच हर वक्त इत्थे घ्यो मैदा, ये सारियां ताकतवर चीज़ां ने। तुहाडी रसोई दे विच सोहणियां जिहड़ियां चंगे पदार्थ तुहाडी रसोई च रोज़ बन रहे हैं, शरीर नूं ताकत देने वाले। कमाल की गल वेखो, शरीर नूं ताकत देने वाले भी तुहाडे कोल पदार्थ ने, ते मन नूं ताकत देने वाले भी तुहाडे कोल पदार्थ ने। नित रसोई तेरी है, नित ही तुहाडी रसोई विच घ्यो मैदा खान। खान मीनिंग खंड, मैदा ते घ्यो, ये सारियां चीज़ां तुहाडी रसोई विच, तुहाडे लंगर विच हर वक्त वरतदियां ने। बराबरता है, जिवें लंगर छकण लग्गियां बराबरता है, शब्द का लंगर छकण लग्गियां भी बराबरता है। खत्तरी ब्राह्मण सूद वैश उपदेश चौं वर्ना को साझा। जिथे किसी दलित नूं धार्मिक ग्रंथ पढ़न सुनने की इजाजत नहीं सी, इत्थे उपदेश बराबर है। जिवें लंगर छकण लग्गिया कोई वितकरा नहीं, इत्थे शब्द का लंगर सुन वरताउण लग्गिया भी कोई वितकरा नहीं। आ सी क्रांति जिहड़ी गुरु नानक साहब जी, ये सी नानक निर्मल पंथ चलाया। ये सी बलिहारी गुरे अपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस देवते की करत न लागी वार। नित रसोई तेरिए घ्यो मैदा खान, कहते चारे कुंडा सुझियोस मन में शब्द प्रवान। हे महाराज, हे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी, तुहाडी मेहर की नज़र नाल जिहदे भी मन विच शब्द घर कर गया, शब्द प्रवान हो गया, जिहदे अंदर भी शब्द टिक गया, चारे कुंडा सुझियोस, उन्होंने चारे बन्ने सोझी होगी भी वह मालक सर्व व्यापक है,
वो फिर किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता, किसी पत्थर के अगे सिर नहीं झुकाउंदा, फिर मूर्ति पूजा तो बच के सर्व व्यापक मालक दे नाल जुड़दा है। चारे कुंडां सुझियोस मन में शब्द प्रवान, जिहदे मन विच गुरु का शब्द टिक गया, प्रवान हो गया, उन्होंने हर बन्ने मालक वसदा होया दिस पैंदा है। आवागौण निवारियो, वह फिर आवागौण निवारिया जाता है। किहड़ा आवागुण? मन का, क्योंकि मन में शब्द टिकना है तो मन का आवागुण ही निवरना है। मन ही जमदा मरदा, कदी किसी तन वेख के मरदा, कदी किसी धन वेख के मरदा, कदी किसी घर वेख के मरदा। पर धन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवागौण होत है फुन फुन, ये प्रसंग ना टूटे। आवागौण निवारियो, कर नज़र निशान, जिहड़ा तुहाडी मेहर दी नज़र दा पात्र बन गया। तो बनेगा कौन भला? जिन्हें अपने अंदर शब्द नूं टिका लिया, जिन्हें अपने अंदर गुरु की सिक्ख्या टिका ली। यानी कि इत्थे दोवें गल्लां आ गईयां। शब्द मन दा लंगर है तो नित रसोई तेरी है, घ्यो मैदा खाने तन दा लंगर है। पर अज बहुती भीड़ तन दे लंगर दी हुंदी। ऐतवार जाके वेख लो, अगों पिछों जाके वेख लो, ये चेता रहिंदा घर तक दाल किन्ने प्रकार दी सी, जलेबियां किदां दियां सी, पकौड़े किदां दे सी, उत्थे चौल किदां दे सी। ये चीज़ां असीं नहीं कहंदे चीज़ां नहीं चाहीदियां, चाहीदियां ने, आए होए ने, उत्थे छकना है। पर यह ना होवे घर तक असीं इहदे ते लिफाफे लै आईए तो शब्द साडे घर तक आवे ना। असीं दो ही तो काम कीते आ, जां ते सरोवर चों जिहड़ा पानी है जिन्हों असीं जल कहने आ, जां ते ओहदियां कैनियां भर के लै आंदियां, जां लंगर उत्थों लै आंदा। शब्द ते घरां तक आए नहीं। जे शब्द घरां तक आउंदा ते गल बन ना जांदी, जिंदगी खूबसूरत ना बन जाती। शब्द ते लैके नहीं आए, एजुकेशन ते नाल आई नहीं साडे। इहो एक वजह सी कि जदों शब्द साडे कोल आउंदा, जे गुरु अमरदास महाराज वर्गी शख्सियत ने उच्ची सुरत की इस मधानी दे राही शब्द नूं रिड़ के समुंदर नूं वरोल के इहदे विचों 14 रत्न कढे सी, अज आपां क्यों नहीं सी कढ सकदे? अज भी जिन्हां कोल शब्द है, हुण हैगा तो उही बंदा है ना। उम्र करके बंदा कई बार छोटा हुंदा है, पर अहुदा वड्डा होण करके वड्डी उम्र के बंदे नूं उहदे गाड़ी सिर झुकाउणा पैंदा। क्यों? एजुकेशन अगले कोल। हुण आपां कई बार IPS वेखदे हां, IAS अफसर वेखदे हां, उम्र में कई बार वो छोटे होंदे ने, 40 साल का है, पर उन्होंने सलूट मारन वाला कई बार 50 साल का होंदा है, 65 साल का होंदा है। क्यों? एजुकेशन है, अहुदा है। अगले ने शब्द रड़के, अगले ने शब्द का मंथन किया, वह शब्द अपने महकमे का सी, जिहड़ी उन्हें एजुकेशन जिहड़ी उन्हें स्टडी की है। जे एक दुनियावी बंदा पढ़िया लिखिया उस एजुकेशन राही एडे उच्चे उहदे ते जा सकता है, तो यह तो सिफत सलाह का शब्द सी, ये तो सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान सी। इहो ही तो ये शब्द महंगे ना जुड़े सी। भगत नामदेव जी गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आड़ दाम को शीपरो होयो लाखीना। अद्धी कौड़ का जिन्होंने लोग आते थे लखां का किदां बन गया, क्योंकि महंगे शब्द ना जुड़े सी। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लहारा भयो गुणी गहीरा। रविदास ढोंता ढोर नितिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगतां में गणिया। ये बिद सुन के जाटरू उठ भगती लागा, मिले प्रताप गुसाइयां धन्ना वड भागा। ये शब्द रड़कना सी, इस शब्द नूं मंथन करना सी। तो खैर, आवागौण निवारियो कर नदर निशान, कहते अवतरिया अवतार लै। कहते अकाल पुरख गुरु अमरदास महाराज जी के रूप में, यानी कि गुरु अमरदास विच उही गुण है जिहड़े रब विच बयान किए गए हैं। यानी कि गुरु अमरदास विच साक्षात वो गुण असीं अखीं वेखे ने। वो निर्वैरता, वो निरभैता, उही सारियां नाल इक्को जिहा विहार करना। हुण इहदा अर्थ ये नहीं भी उन्होंने अपने आप नूं भगवान खवाया है, पर गल गुणां दी उत्थे भी असीं साक्षात रूप च गुरु अमरदास विच वो गुण वेखे ने। अवतरिया अवतार लै सो पुरख सुजान। कहते इंज असीं इंज महसूस करते हैं, भाई सत्ता जी कहते भी परमेश्वर ही आप गुरु अमरदास जी रूप में साडे सामने बैठा है। यानी कि असीं वो गुण, वो क्वालिटी, वो सारे असीं गुरु अमरदास महाराज विच वेखे ने। जदों बाणी ये कहते ने बंदिया तू परमेश्वर बनना है, तो उहदा अर्थ की है? वो क्वालिटी, वो गुण अपने विच लैके आ, तेरे विच वो गुण सारे मालिक ने पाए हुए ने। उन्होंने अपने अंदरों प्रगट कर, फलगुण आनंद उपार्जन हर सज्जण प्रगटे आए। फिर कहते वो रब्बी रूप होने करके कहते झक्खड़ वाओ ना डोले, किन्ने झक्खड़ झुले, किन्नियां हनेरियां वगियां, किहड़े किहड़े इत्थे बादशाह आए, परवाह की किसी की, किन्ने डलाउण आए। झक्खड़ वाओ ना डोले, क्योंकि परबत मेरान अज पहाड़ बन गए। जिवें भगत कबीर ने कहा तू मेरो मेर परबत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद
बसै सुखी सुखी साध ही। तो किन्ने प्यारे शब्द इत्थे वरते, कहते झक्खड़ वाव न डोले पर्बत मेरान। गुरु अमरदास महाराज वकारां दे किन्ने वकारां दे अमले, कहते वकारां दे जिन्ने मर्जी झक्खड़ आए हनेरियां आईयां उन्हां सामने अडोल रहे, सुमेर पर्वत की तरह अडोल रहे। फिर अगे कहते हैं जाने बिरथा जी की। हर एक जी की बिरथा जानते हैं, पीड़ा जानते, जानी हूँ जान। तो पीड़ा जान के तो फिर मसले हुण औरत की इस पीड़ा नूं किहने जाणिया कि पहलियां रहबरां नूं पता नहीं सी, जिहड़े वड्डे वड्डे धार्मिक लंबरदार है उन्हां नूं नहीं सी पता भी सानूं भी किसी औरत ने जन्म दिता है। औरत की उस पीड़ा नूं क्यों नहीं जाणिया उन्होंने? जे उन्हां दा कल पुत्र पूरा हुंदा सी ते ओह नूंह नूं साड़दे सी, ते जदों उन्हां दे जवाई पूरे हुंदे सी धीआं भी तो सड़दियां सी ना। पर धर्म के नाम ते सब प्रवान करते। औरत की इस माड़ी हालत नूं, इस पीड़ा नूं गुरु अमरदास जी ने जानिया ते महसूस किया, उस पीड़ा नूं निवारण भी किया। फिर पातशाह जी कहते हैं बिरत पातशाह जी का यह गुण जदों बयान कर रहे हैं भाई सत्ता जी, तो किन्ने अंदरों भेज के बयान कर रहे हैं। जाने बिरथा जी की, जी दी जानी हूँ जान। वो जानी जान गुरु हर एक जी दी बिरथा जान के, पीड़ा जान के उन्होंने नाल खलोते हुए ने। क्या सलाह ही सच्चे पातशाह, मैं की उस्तत करा, किहड़े गुण बयान करा। जां तू सुकाड़ सुजान, तुसी सोहनी घाड़त वाले सियाणे जे, दान जे सतगुर भाव सी। कहण लगे इत्थे बस नहीं, कहण लगे मैनू सत्ते नूं तेरी ओह बख्शिश चंगी आ। इत्थे सत्ते का नाम आया, दान जे सतगुर भाव सी सो सत्ते दान। ये साड़ा सत्ता शब्द है, ये भाई सत्ते जी का नाम आया है। सो सत्ते दान, कितने प्यारे शब्द वरते। दान जे सतगुर भाव सी सो सत्ते दान। कहण लगे मैनू भी ओह बख्शिश चंगी लगती है जिहड़ी मेरी गुरु नूं चंगी लगती है। जो मेरे गुरु नूं चंगा लगदा अज मैनू भी ओह चंगा लगदा है। तो इन्ने प्यारे शब्द कहण वाले भाई सत्ता जी, सोच के वेखियो जिहड़ी आपां गल पिछे कह आए हैं, इन्नियां प्यारियां गल्लां कहण वाले भाई सत्ता जी की भला वो अपना ईमान डोल सकते? सोच के वेखियो कि वो अपनी बेटी के विआह वाली गल उन्हें इहो जी शख्सियत नाल कदी जुड़ सकती कि पैसे बदले गुस्से होकर चले सकते, जिहड़े गुरु की मर्जी विच तुर लई अपने आप नूं तैयार कर रहे होण। ये साखियां नरमूल आ जिहड़ियां इहो ਜਿਹੇ योधियां दे नाल इन्हां नूं बदनाम करन वास्ते विरोधियों वालों जोड़ियां गईयां, जो आपां पहिलां भूमिका 'च भी विचार कर चुके हैं, ताकि स्रोतिਆਂ ਨੂੰ पता लग सके कि सारियां साखियां मन घड़त है। बहुत प्यारे इंसान सी जिन्हां ने गुरु साहब जी के ये गुणां नूं सोहणे शब्दां विच बयान किया है। तो अखीर ते कहंदे ने नानक हंदा छत्र सिर। कहंदे कमाल की गल वेखो, गुरु अमरदास महाराज जी के सिर के उत्ते भी उही छत्र जिहड़ा कदी गुरु नानक साहब के सिर के उत्ते छत्र सी। कहंदे नानक हंदा छत्र सिर उमत हैरान। कहते सारी उमत लागे जी जिन्नी संगत हैरान हो रही है भी जो गुण क्वालिटियां उन्होंने गुरु नानक साहब च, गुरु अंगद साहब च वेखियां उही गुरु अमरदास च वेखियां। नानक हंदा छत्र सिर, कह लगे उमत हैरान। कहते उमत सारी संगत जी हैरान हो रही है। सो टिक्का उही नूर झलक रहा है, सो बहना कहते उही तख्त है, उही दरबार है। कहते प्यू दादे जिवेहा पोतरा प्रवान। कहते अज पोतरा भी प्रवान हो रहा है क्योंकि वो गुण है। दुनियावी पीढ़ियां बदलदियां ने, आम नहीं कहते हुण भाई पोतरे की दादे नाल किद्दां बनूगी, पोतरे का हुण होर हिसाब है, दादे का कुछ होर हिसाब है। पर प्यारे गुरमत चेंज नहीं सी। गुरमत पता किद्दां सी, मच्छी के परिवार वांग जीवन मरना विसरे पानी। मच्छी का परिवार पानी तो कभी बागी हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। पता क्यों? क्योंकि जिहड़ी मच्छी है ना, वो जदों तो संसार ते होंद विच आई, उहदा पानी जीवन है तो रहिंदी दुनिया तक पानी जीवन रहना है। कल नूं मच्छी कहे हुण आपां इन्ने अमीर हो गए हैं, हुण तां दादियां पड़दादियां की मजबूरी सी पानी च रहना, हुण ते असीं 21वीं सदी पहुँच चुके हैं, थोड़ा कोई लीक्विड महंगे कोई तरल पदार्थ लियाओ ना। भाई मच्छी का जीवन पानी हैगा तो पानी रहना। तो गुरु क्या सिखा, लखां दुनिया के पदार्थ बाहर लिया जाण पर आत्मक जीवन बाणी हैगा तो बाणी रहना। जिथे मर्जी भज ला आउणा तैनूं अखीर मुड़ के इत्थे पैना। कई आ गए ने तो कईयां ने बाद विच एक दो पीढ़ियों बाद वापस मुड़ के आ जाना। गुरु बख्शिश करे असीं इस गल नूं समझ सकीए। तुसीं जिस मर्जी देश विच रहो, जिहड़ी मर्जी लैंगवेज भाषा बोलो, कोई मनाही नहीं, पर जदों इत्थे शब्द वरतिया जाना है ना, गल गुणां दी होनी। जदों भी किसी नूं सुख मिलना ना, वो सबर संतोख दैवी गुण धारण कीते मिलना। वो चंगे गुण क्वालिटी जिहड़े गुणां नूं बाणी ने जिस गुणां नूं रब कहा ना, उन्हां गुणां नूं धारण कीतियां ही संतुष्टि मिलनी। जिथे मर्जी भज ला, लालच ने तैनूं सुखी नहीं होण देना। जिहड़ी गल आपां 6 नंबर पौड़ी च पढ़ चुके हैं ना, लभ विना है मानसा जो पानी बूर। लालच इदां जिंदगी नूं तबाह करदा,
ਜਿਵੇਂ ਬੂਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੀਣ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾਲਾ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਸ ਵੀ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ। ਬਸ ਲਾਲਚ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਮਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।